ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں مٹی کے گھر، کچی گلیاں اور سادہ دل لوگ بستے تھے، وہاں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کی زندگی شروع ہی سے آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب وہ صرف 10 سال کا تھا، اور اس کی ماں نے سلائی کڑھائی کر کے اسے پالا۔ غربت ان کے گھر کی مستقل مہمان تھی، لیکن ایمان اور صبر ان کا اصل سرمایہ تھا۔ احمد کی ماں اکثر اسے کہا کرتی تھی، بیٹا یاد رکھنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا کی تکلیفیں عارضی ہیں، مگر آخرت کی کامیابی ہمیشہ کی ہے۔ یہ الفاظ احمد کے دل میں ایسے بیٹھ گئے جیسے خشک زمین میں بارش کا پہلا قطرہ جذب ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا احمد بڑا ہوا، تعلیم مکمل کی، اور شہر میں نوکری کی تلاش میں نکل پڑا۔ لیکن قسمت جیسے اس کے امتحان لینے پر تالی ہوئی تھی۔ ایک جگہ انٹرویو دیا تو سفارش نہ ہونے کی وجہ سے رد ہو گیا، دوسری جگہ گیا تو تنخواہ اتنی کم تھی کہ گھر کا خرچ پورا نہ ہو سکتا تھا۔ کئی مہینے گزر گئے، مگر کامیابی اس کے قدم نہ چوم سکی۔ گاؤں کے کچھ لوگ تانے دینے لگے، اتنی پڑھائی کا کیا فائدہ ہوا، آخر میں تو وہی کھیتی باڑی کرنی ہے۔ یہ الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں لگتے، مگر وہ خاموش رہتا۔ وہ جانتا تھا کہ شکایت کرنا آسان ہے، لیکن صبر کرنا اصل امتحان ہے۔ ایک دن اس کی ماں شدید بیمار ہو گئی، گھر میں دوائی کے پیسے بھی نہ تھے۔ احمد ساری رات جاگ کر اللہ سے دعا کرتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر زبان پر شکو نہ آیا۔ وہ بس سیتا رہا، اللہ مجھے صبر دے اور میری ماں کو شفا دے، اگر یہ بھی تیری آزمائش ہے تو مجھے کامیاب کر دے۔ چند دن بعد ایک پرانا استاد اچانک اس کے گھر آیا۔ اسے احمد کی حالت کا علم ہوا تو اس نے شہر میں ایک اچھی کمپنی میں اس کے لیے سفارش کر دی۔ احمد کو نوکری مل گئی، تنخواہ بہت تھی۔ اس نے سب سے پہلے اپنی ماں کا علاج کروایا۔ کچھ ہی مہینوں میں وہ صحت یاب ہو گئیں۔ احمد نے سجدے میں گر کر شکر ادا کیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تاخیر کرتا ہے، انکار نہیں۔ لیکن زندگی کی آزمائشیں ختم کہاں ہوتی ہیں۔ کچھ سال بعد جب احمد کی شادی ہو چکی تھی اور اس کے 2 بچے تھے، اچانک کمپنی بند ہو گئی۔ وہ دوبارہ بیروز ہو۔ اس بار حالات پہلے سے بھی زیادہ سخت تھے۔ کرایہ، بچوں کی فیس، گھر کا خرچ، سب کچھ اس کے کندھوں پر تھا۔ اس کی بیوی فاطمہ نے ایک دن کہا، اے ریشہ نو البتر مسبملر صبر۔ احمد نے مسکرا کر کہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ اس وعد یقین رات۔ وہ دن بھر نوکری کی تلاش کرتا، رات کو قرآن کی تلاوت کرتا اور بچوں کو صبر کی کہانیاں سناتا۔ وہ انہیں حضرت الفاب کا واقعہ سناتا کہ کس طرح انہوں نے شدید بیماری اور نقصان کے باوجود صبر کا دامن نہ چھوڑا، اور آخرکار اللہ نے انہیں پہلے سے زیادہ عطا فرمایا۔ نظر ازمائش لمبیوت، کبھی گھر میں صرف دال ہوتی، کبھی وہ بھی نہیں، لیکن احمد کے گھر میں نماز اور دعا کبھی کم نہ ہوئی۔ ایک رات احمد نے خواب دیکھا کہ ایک روشن چہرے والا بزرگ اسے کہہ رہا ہے، غم نہ کر، صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ وہ برارا اے دل کو عجیب سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے ہی دن اسے ایک دوست کا فون آیا جس نے برغن ایک ملازمت کی پیشکش کی۔ یہ موقع اس کی زندگی بدل سکتا تھا۔ اس نے استخارہ کیا، دعا کی اور آخرکار یہ پیشکش قبول کر لی۔ چند سالوں میں اس کی مالی حالت بہتر ہو گئی۔ اس نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول بنوایا تاکہ غریب بچوں کو تعلیم مل سکے۔ وہ ہمیشہ اگر میں نے صبر نہ کیا ہوتا تو شاید آج یہ دن نہ دیکھتا۔ لیکن کہانی کا اصل سبق دنیاوی کامیابی نہیں تھا، اصل کامیابی اس کے دل کا سکون تھا۔ احمد جان چکا تھا کہ آزمائشیں دراصل اللہ کی طرف سے خاص بندوں کے لیے انتخاب ہوتی ہیں۔ جسے اللہ اپنا بنانا چاہتا ہے، اسے صبر کے راستے سے گزارتا ہے۔ کچھ سال بعد احمد کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ رویا، مگر اس کے آنسو شکو نہیں تھے۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا فانی ہے۔ اس نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا، امی اپنے سچ کہا تھا، صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ وقت گزرتا احمد بوو، اس کے بچے کامیاب ہو گئے۔ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب بھی کوئی مشکل میں مبتلا ہوتا، وہ احمد کے پاس آتا۔ احمد النصحت رتا، مشکل وقت میں جلدی فیصلہ نہ کرو، صبر کرو، دعا کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جنت کی خوشخبری انہی کے لیے ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں۔
आखिरकार एक दिन अहमद भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। इसके चेहरे पर सुकून था, जैसे वो किसी प्यारे सफर पर जा रहा। गांव के लोग कहते थे कि उन्होंने इस जैसा साबिर इंसान कम ही देखा है। कहते हैं कि क़ियामत के दिन जब लोग अपने अमाल के मुताबिक जज़ा व सज़ा पाएंगे तो सब्र करने वालों के लिए एक ख़ास ऐलान होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में सब्र किया, आज उनके लिए जन्नत है जहाँ ना कोई गम होगा, ना तकलीफ, ना जुदाई। और शायद अहमद भी उन्हीं लोगों में शामिल होगा जिनके बारे में कुरान में फरमाया गया, इन्नमा युवफ़्फ़स-सबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब। बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी की मुश्किलात वक्ती हैं, लेकिन अल्लाह का वदा अबदी है। जो शख्स हर हाल में सब्र करता है, शुक्र अदा करता है और अपने रब पर भरोसा रखता है, इसके लिए दुनिया में सुकून और आखिरत में जन्नत की बशारत है। बस अगर आज तुम किसी आजमाइश से गुजर रहे हो, अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, अगर आंसू तुम्हारी आंखों से बह रहे हैं, तो याद रखो, सब्र करो, क्योंकि तुम्हारे रब ने वदा किया है कि सब्र करने वालों के लिए जन्नत तैयार है। अहमद की वफ़ात के बाद गांव के लोग अक्सर इसकी ज़िंदगी को याद करते थे, लेकिन असल कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि सब्र का असर सिर्फ एक इंसान तक महदूद नहीं रहता, वो नस्लों तक मुंतकिल होता है। अहमद का बड़ा बेटा यूसुफ अपने वालिद की तरह नरम दिल और बाईमान था। बचपन से इसने अपने घर में गुर्बत भी देखी थी और खुशहाली भी। इसने ये भी देखा था कि इसके वालिद ने कभी हालात को इल्ज़ाम नहीं दिया, बल्कि हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहा। एक दिन यूसुफ के कारोबार में अचानक बड़ा नुकसान हो गया। जिस कंपनी में इसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी वो दिवालिया हो गई। कर्दु दैरिंदर वज़र अन्नली। दोस्त अहबाब ने मुंह मोड़ लिया। वदुनजू एम बिरतारिफ्रती अब नमैमिरतिन क़दरत। रात को वो अपने वालिद की कब्र पर गया, खामोशी से बैठकर बोला, अबू, अपने सिखाया था कि सब्र करने वालों के लिए जन्नत की बशारत है, लेकिन सब्र करना इतना मुश्किल क्यों होता है। हुआ में हल्की सी ठंडक थी। इन दिन क़ब्रिस्तान लिवाईति। यूसुफ की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल के अंदर कहीं एक रोशनी भी थी। इसे अपने वालिद की आवाज़ याद आई, बेटा, सब्र का मतलब ये नहीं कि तकलीफ महसूस ना हो, सब्र का मतलब है तकलीफ के बावजूद अल्लाह पर भरोसा। अहमद की वफ़ात के बाद गांव के लोग अक्सर इसकी ज़िंदगी को याद करते थे, लेकिन असल कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि सब्र का असर सिर्फ एक इंसान तक महदूद नहीं रहता, वो नस्लों तक मुंतकिल होता है। अहमद का बड़ा बेटा यूसुफ अपने वालिद की तरह नरम दिल और बाईमान था। बचपन से इसने अपने घर में गुर्बत भी देखी थी और खुशहाली भी। इसने ये भी देखा था कि इसके वालिद ने कभी हालात को इल्ज़ाम नहीं दिया, बल्कि हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहा। एक दिन यूसुफ के कारोबार में अचानक बड़ा नुकसान हो गया। जिस कंपनी में इसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी वो दिवालिया हो गई। कर्दु दैरिंदर वज़र अन्नली। दोस्त अहबाब ने मुंह मोड़ लिया। वदुनजू एम बिरतारिफ्रतीत अब नमैमिरतिन क़दरत। रात को वो अपने वालिद की कब्र पर गया, खामोशी से बैठकर बोला, अबू, अपने सिखाया था कि सब्र करने वालों के लिए जन्नत की बशारत है, लेकिन सब्र करना इतना मुश्किल क्यों होता है। हुआ में हल्की सी ठंडक थी। इन दिन क़ब्रिस्तान लिवाईति। यूसुफ की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल के अंदर कहीं एक रोशनी भी थी। इसे अपने वालिद की आवाज़ याद आई, बेटा, सब्र का मतलब ये नहीं कि तकलीफ महसूस ना हो, सब्र का मतलब है तकलीफ के बावजूद अल्लाह पर भरोसा कायम रखना। अगले दिन यूसुफ ने हिम्मत जमा की। इसने कर्जदारों से मोहलत मांगी। कुछ ने इनकार किया, कुछ ने मजाक उड़ाया, मगर वो साबित कदम रहा। इसने छोटे पैमाने पर नया कारोबार शुरू किया। दिन रात मेहनत की। कभी खाना वक्त पर ना मिलता, कभी नींद पूरी ना होती, लेकिन इसने नमाज और दुआ का सिलसिला ना छोड़ा। महीनों की जिदोजहद के बाद आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। इराना वसअ और दूसरा और तीसरा और अरसिन बिलिनली कर्दुन इद्दन वनली। और यूसुफ के दिल में यकीन मजीद मजबूत होता गया कि अल्लाह अपने वादे में सच्चा है। लेकिन आजमाइश सिर्फ माल की नहीं होती, कभी दिल की भी होती है। यूसुफ की छोटी बहन मरियम की शादी के चंद साल बाद इसका शौहर एक हादसे में इंतकाल कर गया। वो 2 छोटे बच्चों के साथ बेवा हो गई। दुख का पहाड़ टूट पड़ा। मरियम कई दिन तक खामोश रहती, किसी से बात ना करती। एक रात वो अपनी माँ के पास बैठी थी। इसने रोते हुए कहा,
उम्मी मैंने क्या गुनाह किया था। इसकी माँ ने इसे सीने से लगा लिया और आहिस्ता से कहा, बी अज़्म-ए-इश्न की सज़ा नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात अल्लाह की महब्बत की निशानी होती है। सब्र करने वालों के लिए जन्नत की बशारत है। मरियम ने आंसू पोंछे। इसने फैसला किया कि वो टूटेगी नहीं। इसने सिलाई सीख ली, बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी को संभाल लिया। वो रातों को तहज्जुद में रुकर दुआ करती, मगर दिन में बच्चों के सामने मुस्कराती। वक्त ज़रता इसके बच्चे बड़े हुए, तालीम हासिल की, और एक दिन वही बच्चे इसके लिए सहारा बन गए। मिरिम एफर्ट, अगर मैंने इस वक्त सब्र ना किया होता तो शायद आज ये खुशी ना देखती। गांव में अहमद के खानदान की मिसाल दी जाने लगी। लूता, ये वो घराना है जिसने हर आजमाइश में सब्र किया और अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी। लेकिन सबसे खूबसूरत मंजर वो था जो दुनिया की आंखों से पोशीदा था। कहते हैं कि जब बंदा सब्र करता है तो फरिश्ते इसके लिए दुआ करते हैं। जब वो शको नहीं करता बल्कि अना लिल्लाह व अना इलैहि राजिऊन कहता है तो इसके नामा अमाल में ऐसे इनामात लिखे जाते हैं जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क़यामत के दिन जब लोग हिसाब के लिए खड़े होंगे, कुछ लोग अपने अमाल देखकर हैरान होंगे। वाह अल्लाह, हमने तो इतनी इबादत नहीं की थी, फिर ये अजर कहाँ से आया? अल्लाह फरमा, ये तुम्हारे सब्र का बदला है जो तुमने दुनिया में दुखों पर किया था। और जन्नत के दरवाजे पर एक आवाज़ गूंजेगी, अस्सलामु अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बad-दार। तुम पर सलामती हो तुम्हारे सब्र के बदले, क्या ही बेहतरीन अंजाम है इस घर का। शायद अहमद, यूसुफ, मरियम और उन जैसे बेशुमार लोग इस सफ़ में खड़े होंगे। वो लोग जिन्होंने दुनिया में आंसू बहाए मगर ईमान ना छोड़ा, जिन्होंने तकलीफ सही मगर ज़ुबान पर शको ना लाए, जिन्होंने महरूमी देखी मगर अल्लाह के वादे पर यकीन कायम रखा। ये कहानी सिर्फ एक ख़ानदान की नहीं, ये हर इस दिल की कहानी है जो आजमाइश से गुजर रहा है। इरितम-ए-जिरिशैनु इरतमरा-रि-ख़वाबू, अगर तुम खुद को अकेला महसूस करते हो तो अदरू, दुनिया का हर गम आर्जी है, हर रात के बाद सुबह है और हर सब्र के बाद जन्नत की बशारत है, क्योंकि अल्लाह का वदा सच्चा है और बेशक सब्र करने वालों के लिए जन्नत की बशारत। वक्त का पहिया खामोशी से घूमता रहा, नस्लें बदलती गईं, मगर अहमद के घर की बुनियाद जिस चीज़ पर रखी गई थी वो ना बदली, सब्र और अल्लाह पर कामिल भरोसा। यूसुफ का बेटा हमजा एक ज़हीन और बासलाहियत नौजवान था। वो जदीद तालीम याफ्ता था, बड़े ख्वाब रखता था और शहर की मसरूफ़ ज़िंदगी में अपना मकाम बनाना चाहता था। इसने एक बड़ी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और एक मरूफ कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली। बज़ाहिर ज़िंदगी इसके लिए आसान हो चुकी थी, मगर आजमाइश सिर्फ गुर्बत से नहीं आती, कभी आजमाइश कामयाबी के दरवाजे पर भी खड़ी होती है। कंपनी में तरक्की के लिए मुकाबला सख्त था। लोग एक दूसरे को नीचा दुखाने में मसरूफ़ रहते। हसद, झूठ और साजिशें आम थीं। एक दिन हमजा पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया कि इसने कंपनी का खुफिया डेटा लीक किया है। बग़ैर मुकम्मल तहकीक के इसे मुअत्तल कर दिया गया। हमजा के लिए ये लम्हा क़यामत से कम ना था। इसकी इज़्ज़त, इसका कैरियर, इसकी मेहनत सब खतरे में थी। वर-ए-तौरा-रि-रिशैनित, इसकी माँ ने पूछा तो वो खामोश रहा, मगर आंखें सब कुछ बयान कर रही थीं। रात को वो अपने दादा अहमद की डायरी पढ़ने लगा, जो ख़ानदान ने संभाल कर रखी हुई थी। इसमें एक जुमला लिखा था, जब लोग तुम पर जुल्म करें और तुम बेकसूर हो तो गम ना करो, अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। सब्र करने वालों के लिए जन्नत की बशारत है। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। इसने वुज़ू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी और सजदे में गिरकर कहा, अल्लाह, अगर मैं बेकसूर हूँ तो मुझे सुरखरू कर दे, और अगर ये आजमाइश है तो मुझे सब्र दे। अल-नदफ़िता इंत, दोस्तों ने दूरी इख्तियार कर ली, कुछ रिश्तेदारों ने भी शक की निगाह से देखा, मगर हमजा ने सोशल मीडिया पर सफाइयाँ देने आचीखने चलाने के बजाय खामोशी इख्तियार की। वो जानता था कि सच को वक्त चाहिए होता है, मगर वो दब नहीं सकता। तहक़ीक़ात जारी, बिलाखिर असल मुजरिम पकड़ा गया, वही शख्स जो हमजा से हसद करता था। कंपनी ने सरकारी तौर पर मुआफ़ी मांगी और इसे न सिर्फ बहाल किया बल्कि इज़्ज़त के साथ तरक्की भी दी। इस दिन जब वो घर वापस आया तो इसकी आंखों में शुक्र के आंसू थे। इसने अपनी माँ से कहा, उम्मी, वाकई अल्लाह सब्र करने वालों को रुस्वा नहीं करता, लेकिन ज़िंदगी का असल इम्तिहान अभी बाकी
है। कुछ साल बाद शहर में शदीद माशी बुहरान आया। बिरोज रिबिया और अरबंद वनल। हमजा ने देखा कि इसके इर्द गिर्द कई लोग मायूसी का शिकार होकर गलत रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। कुछ ने हराम कमाई शुरू कर दी, कुछ ने सूदी लेन देन में कदम रख दिया। एक दिन हमजा को भी एक बड़ी पेशकश हुई, एक ऐसा मुआहदा जिसमें बज़ाहिर बहुत फ़ायदा था, मगर इसमें धोखा शामिल था। अगर वो दस्तखत कर देता तो चंद महीनों में करोड़पति बन सकता था। वसैर रज्जतरा। दिल में कशमकश थी, एक तरफ माली आसाइश, दूसरी तरफ अल्लाह का खौफ। आखिरकार इसने कुरान खोला। इसकी नज़र इस आयत पर पड़ी, वल्लाहु युहिब्बुस सबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। इसने कलम नीचे रख दिया और पेशकश ठुकरा दी। लोगों ने कहा, तुमने जिंदगी का सुनहरी मौका ज़ाय कर दिया। हमजा ने मुस्करा कर जवाब दिया, मैं वक्ती दौलत के बदले हमेशा की कामयाबी नहीं खोना चाहता। चंद माह बाद वो कंपनी जिसने इसे धोखे का मुआहदा दिया था, बदउनवानी के इल्ज़ाम में पकड़ी गई। इसके मालिकान जेल चले गए। हमजा ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने इसे गुनाह से बचा लिया। वक्त ज़र है। हमजा के अपने बच्चे हुए। एक दिन इसकी बेटी आयशा ने पूछा, अबू, हमारे ख़ानदान में सब लोग मुश्किलात में भी अल्लाह का नाम किए लेते हैं। हमजा ने इसे गोद में बिठाकर कहा, बेटा, क्योंकि हमने सीखा है कि दुनिया आर्जी है, असल ज़िंदगी आखिरत की है, और अल्लाह ने वदा किया है कि सब्र करने वालों के लिए जन्नत की बशारत है। फिर इसने इसे अपने परदादा अहमद की कहानी सुनाई, अपनी फूफी मरियम की जिदोजहद सुनाई, और अपनी ज़िंदगी की आजमाइशें भी बयान की। आयशा खामोशी से सुनती रही। इसके नन्हे दिल में भी सब्र का बीज बो दिया गया। कहते हैं कि ईमान विरासत में नहीं मिलता, मगर इसकी तरबियत ज़रूर नस्लों में मुंतकिल होती है। शायद क़ियामत के दिन जब अहमद और इसकी नस्लें इकट्ठी खड़ी होंगी, तो वो एक दूसरे को पहचान कर मुस्कुराएंगे, क्योंकि उन्होंने दुनिया में आजमाइशों को बर्दाश्त किया, मगर ईमान को नहीं छोड़ा। जन्नत के बागात में, जहाँ ना कोई दुख होगा ना जुदाई, शायद वो सब एक साथ बैठे होंगे। ना गुर्बत का खौफ, ना बीमारी का दर्द, ना इल्ज़ाम का बोझ, सिर्फ सुकून, सिर्फ रहमत, सिर्फ अल्लाह की रज़ा। और वहाँ एक आवाज़ गूंजेगी, उलूजन। जिन्होंने दुनिया में सब्र किया, आज उनके लिए हमेशा की कामयाबी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सब्र कमज़ोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। ये खामोश जिदोजहद है जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा कीमती है। ये वो रास्ता है जो आंसुओं से शुरू होता है, मगर जन्नत पर ख़त्म होता है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई आजमाइश है, अगर तुम्हें लगता है कि इंसाफ देर से मिल रहा है, इर्तमती इंतज़ारु रात तौमती न आरो, क्योंकि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, और अल्लाह का वदा सच्चा है। बेशक सब्र करने वालों के लिए जन्नत की बशारत है। वक्त के साथ साथ हमजा की बेटी आयशा जवान हो गई। वो निहायत बाहया, समझदार और नरम दिल लड़की थी। इसने अपने घर में हमेशा ये सीखा था कि मुश्किलात इंसान को तोड़ने नहीं, संवारने आती हैं। आयशा अरबिन न ऐती। इसने दिन रात मेहनत की, लेकिन जब दाखिला इम्तिहान का नतीजा आया तो वो चंद नंबरों से रह गई। इसके लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। इसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कई दिन तक वो किसी से ज्यादा बात ना करती। एक रात इसकी दादी इसके पास आए। उन्होंने नरमी से कहा, बेटी, क्या तुम जानती हो तुम्हारे परदादा ने कितनी आजमाइशें देखी थीं? आयशा की आंखों में आंसू थे। इसने आहिस्ता से कहा, लेकिन दादी, मैंने बहुत मेहनत की थी। दादी मुस्कुराएं, इसके सर पर हाथ फेरा और बोलें, मेहनत दाएउन नजात। कभी वो हमें वो चीज़ देती है जो हम चाहते हैं, और कभी वो हमें वो मकाम देती है जो अल्लाह हमारे लिए बेहतर समझता है। सब्र करने वालों के लिए जन्नत की बशारत है, सिर्फ दुनिया की कामयाबी नहीं। ये अल्फाज आयशा के दिल में उतर गए। इसने फैसला किया कि वो हिम्मत नहीं हारेगी। अगले साल इसने दोबारा इम्तिहान दिया। इस दौरान इसने गरीब बच्चों को मुफ्त ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। वती थी, अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सकी तो क्या हुआ, मैं किसी के लिए आसानी तो बन सकती हूँ। अल्लाह को इसका ये जज्बा पसंद आया। अगले साल वो ना सिर्फ कामयाब हुई बल्कि स्कॉलरशिप भी हासिल की। जब इसका नाम कामयाब उम्मीदवारों में आया तो इसने सजदा शुक्र अदा किया। इसे महसूस हुआ कि अगर पहली बार कामयाबी मिल जाती तो शायद वो दूसरों का दर्द ना समझ पाती।
मेडिकल कॉलेज में इसने कई ऐसे मरीज देखे जो लाइलाज बीमारियों में मुब्तला थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो शदीद तकलीफ में भी मुस्करा रहे थे। एक दिन इसने एक छोटे बच्चे से पूछा, तम दर्द नवत है? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, होता है, मगर उम्मी कहती हैं कि अल्लाह हमें आजमा रहा है और सब्र करने वालों के लिए जन्नत है। आयशा की आंखें नम हो गईं। इसे अपने खानदान की तालीम याद आई। इसने समझ लिया कि सब्र सिर्फ बड़े सानिहात में नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की तकलीफ़ों में भी होता है। सैलबाद आइश अमिब अरबन, वो ख़ास तौर पर गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करती थी। लूता, ये डॉक्टर सिर्फ दवा नहीं देती, उम्मीद भी देती है। एक दिन एक बूढ़ी औरत इसके पास आई। इसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। आयशा ने इसका मुफ्त इलाज किया और जाते वक्त इसके हाथ में कुछ रकम भी रख दी। बूढ़ी औरत ने दुआ दी, बेटी, अल्लाह तुम्हें जन्नत में आला मकाम दे, क्योंकि तुमने सब्र और रहम का रास्ता अपनाया है। रात को आयशा ने सोचा, शायद असल कामयाबी यही है कि इंसान दूसरों के दर्द को कम करे, चाहे खुद कितनी ही आजमाइशों से क्यों ना गुजर चुका हो। उधर हमजा भी बुढ़ापे की तरफ जा रहा था। इदिन नवशुदिद बीमार, डॉक्टरों ने बताया कि इसकी बीमारी खतरनाक है। घर में एक बार फिर आजमाइश का वक्त आ गया। आयशा ने अपने वालिद का हाथ पकड़ा। आंखों में आंसू थे मगर आवाज मजबूत थी। अबू, अपने हमेशा हमें सब्र सिखाया है। अबुन ए मौजूरुन, हमजा ने मुस्करा कर कहा, बेटी, मौत से डर नहीं लगता, बस ये दुआ है कि अल्लाह हमें सब्र वालों में शामिल करे, क्योंकि असल कामयाबी जन्नत है। बीमारी के दिन आसान ना थे। दर्द बता, जिस्म मुजूर वता, मुरजबन रशौना व अफरअता, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ़ना मुस्लिमीन। इमारा रब, हम पर सब्र उंडेल दे और हमें मुसलमान होने की हालत में वफ़ात दे। एक सुबह फजर के बाद हमजा ने कलिमा पढ़ा और खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गया। इसके चेहरे पर सुकून था, जैसे किसी ने इसके दिल का बोझ हटा दिया हो। घर में गम था, आंसू थे, मगर साथ ही एक अजीब सा इत्मीनान भी था, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने आजमाइश में सब्र का रास्ता इख्तियार किया था। वक्त ज़र तरा, आयशा ने अपनी ज़िंदगी खिदमत और ईमान के साथ गुजारी। इसने अपने बच्चों को भी यही सबक दिया कि दुनिया की हर मुश्किल आर्जी है, मगर अल्लाह का वदा हमेशा के लिए है। कहते हैं कि जब जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे तो कुछ लोग बगैर हिसाब के दाखिल होंगे। वो लोग जिन्होंने दुनिया में बेपनाह सब्र किया मगर किसी से शिकायत ना की। शायद अहमद, यूसुफ, मरियम, हमजा और आयशा सब एक साथ वहाँ खड़े होंगे। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएंगे, क्योंकि उनकी आजमाइशें खत्म हो चुकी होंगी। न बीमारियों, न जद्दाए, न गरबत, न इल्ज़ाम, सरफ सोनो, सरिफ रहिमत, सिर्फ अल्लाह की रज़ा। और वहाँ एक ऐलान होगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने सब्र किया, बस आज उनके लिए वो जन्नत है जिसके नीचे नहरें बहती हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सब्र वक्ती खामोशी नहीं, बल्कि दायमी कामयाबी का रास्ता है। ये वो चिराग है जो अंधेरी रातों में भी रोशनी देता है। अगर तुम आज किसी आजमाइश में हो, अगर तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, अगर तुम्हें इंसाफ देर से मिल रहा है, तो अदरो, अल्लाह की अदालत में देर हो सकती है, अंधेर नहीं, और इसका वदा अटल है। बेशक सब्र करने वालों के लिए जन्नत की बशारत है। सैलज़रता, आयशा के बच्चे भी जवान हो गए। जिंदगी का सफ़र जारी था, मगर अब इस खानदान की पहचान सिर्फ एक कामयाब नस्ल न थी, बल्कि एक साबिर नस्ल थी। आयशा का बेटा ज़ैन एक निहायत हसास दिल का नौजवान था। वो दुनिया के हालात देखकर अक्सर परेशान हो जाता। खबरों में जुल्म, नाइंसाफ़ी, जंगें और फ़क्र देखकर इसका दिल भराता। एक दिन इसने अपनी माँ से कहा, उम्मी, अगर अल्लाह सब कुछ देख रहा है तो फिर इतना जुल्म क्यों हो रहा है? आयशा लम्हा खामोश, फिर नरमी से बोलें, बेटा, दुनिया इम्तिहान की जगह है, इंसाफ की मुकम्मल जगह नहीं। असल इंसाफ आखिरत में होगा, और जो लोग जुल्म सह कर भी सब्र करते हैं उनके लिए जन्नत की बशारत है। ये बात ज़ैन के दिल में उतर गई, मगर इसका दिल फिर भी बेचैन रहता। वो चाहता था कि वो दुनिया में कुछ बदले। इसने कानून की तालीम हासिल करने का फ़ैसला किया ताकि मज़लूमों की मदद कर सके। वकील बनने के बाद इसने कई ऐसे केस लड़े जहां गरीब लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा था। बादु औक़ातिन वसी अरबजाता, ऐसे वक्त में वो मायूस हो जाता, मगर फिर अपने ख़ानदान की तारीख़ याद करता।
एक बार इसे एक बेगुनाह शख्स का केस मिला जिस पर झूठा इल्जाम लगा था। मुकदमा तवील था, गवाह कमज़ोर थे और मुखालिफ फरीक ताकतवर था। ज़ैन ने पूरी मेहनत की, मगर फैसला इसके खिलाफ आ गया। इस दिन ओ अदालत के बाहर बैठकर इसने सर झुका लिया। आंखों में आंसू थे। इसने दिल में कहा, अल्लाह, मैंने इंसाफ के लिए कोशिश की, फिर भी नाकाम हो गया। इसी लम्हे इसे अपने परदादा अहमद की डायरी का एक जुमला याद आया। नतीजा तुम्हारे हाथ में नहीं, कोशिश तुम्हारे हाथ में है। सब्र करो क्योंकि असल अजर अल्लाह के पास है। ज़ैन ने गहरी सांस ली। वो समझ गया कि कभी कभी दुनिया में हार भी असल में आखिरत की जीत होती है। कुछ माह बाद इसी केस की अपील हुई। नए शवाहिद सामने आए और वो शख्स बेगुनाह साबित हो गया। अदालत में जब रिहाई का ऐलान हुआ तो इस शख्स की बूढ़ी माँ ने ज़ैन के हाथ चूम लिए और कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें इस सब्र का अजर दे जो तुमने किया। ज़ैन के दिल में अजीब सी रोशनी भर गई। इसे महसूस हुआ कि शायद यही वो लम्हा था जिसके लिए वो आजमाइश से गुजरा था। मगर जिंदगी सिर्फ कामयाबियों का नाम नहीं। दुसैल बादा इशबशुददु बीमारो। वो बिस्तर से लग गईं। डॉक्टर होने के बावजूद वो जानती थीं कि अब वक्त करीब है। घर वाले उनके गिर्द बैठते, कुरान की तिलावत होती और माहौल में एक अजीब सी संजीदगी थी। एक रात आयशा ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कामयाबियां भी देखी हैं और नाकामियां भी, खुशियां भी और गम भी, मगर एक चीज़ हमेशा सच्ची निकली, अल्लाह का वदा। अगर तुम्हें कभी जिंदगी में अंधेरा महसूस हो तो सब्र का चिराग बुझने ना देना। अन एवज़ मुज़ुर्त मुरइमन मकबूत। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अल्लाह, अगर हमने कभी सब्र किया है तो हमें उन लोगों में शामिल करना जिनके लिए जन्नत की बशारत है। चंद दिन बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गईं। घर में खामोशी छा गई, मगर ये खामोशी मायूसी की ना थी, बल्कि एक पुरसुकून यकीन की थी, क्योंकि इस खानदान ने सीख लिया था कि मौत इख्तिताम नहीं, बल्कि मुलाकात का आगाज है। कहते हैं कि जब एक साबिर मोमिन दुनिया से जाता है तो फरिश्ते कहते हैं, ए पाक रूह, अपने रब की तरफ चल, वो तुझसे राजी है और तो इससे राजी है। शायद इसी तरह अहमद, हमजा और अब आयशा भी एक दूसरे से मिल रहे होंगे। शायद वो जन्नत के बागात में बैठकर अपनी दुनियावी आजमाइशों को याद करके मुस्करा रहे होंगे। वो तकलीफ़ें जो दुनिया में पहाड़ लगती थीं, अब उन्हें रेत के ज़र्रों की तरह मामूली महसूस हो रही होगी, क्योंकि जन्नत में ना कोई आंसू होगा, नवी अखौफ, नवी जद्दै, नवा बीमार, व असरफ सदैव। सलाम हो तुम पर, तुम्हारे सब्र के बदले। और यही इस कहानी का असल पैगाम है। जिंदगी आजमाइश है, कभी माल की, कभी औलाद की, कभी इज्जत की, कभी सेहत की, मगर जो शख्स हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता है, जो शकों के बजाय दुआ करता है, जो मायूसी के बजाय उम्मीद को थामे रखता है, वो कभी खसारे में नहीं रहता। शायद दुनिया में इसे देर से इंसाफ मिले, शायद ऐसी बार-बार इंतज़ार न, शायद इसके आंसू कोई ना देखे, मगर अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है और अल्लाह लिख रहा है। और जब वो दिन आएगा, जब रद अजय, जब आमेल इंतूल अजय, जब हर शख्स को इसका बदला मिलेगा, तो सब्र करने वालों के लिए खास ऐलान होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में सब्र किया, बस आज उनके लिए हमेशा की जन्नत है। बस अगर तुम इस वक्त किसी मुश्किल से गुजर रहे हो, अगर तुम्हारा दिल बोझल है, अगर तुम्हें लगता है कि रास्ता तवील है, तो अदरू, तुम्हारा हर आंसू गन्ना जा रहा है, तुम्हारी हर खामोश दुआ सुनी जा रही है, तुम्हारा हर सब्र महफूज किया जा रहा है। बेशक सब्र करने वालों के लिए जन्नत की बशारत है।